Hello everyone. In previous classes, as we studied the topics before this one is definite shape and size, organization, growth and development, metabolism, and many more topics. So today we are going to start the topics as reproduction, homeostasis, consciousness, adaptation, evolution, repair and regeneration, and aging as well as death. So basically what we understand by reproduction. As you studied in class 10th, that reproduction means formation of new organisms to continue your species on earth, or we can say the formation of new individual of similar kind which helps in the survival of any organism. For example, if you take the example of a man, so if you say for continuing its life, it will do or it will reproduce and give birth to a child which will again after some years passing the teenage, he will also become an adult and this process will continue. So basically this is called reproduction. The second thing we are going to see is homeostasis. What is homeostasis? So it is basically the maintenance of constant and favorable internal environment conditions suitable for functioning of body. Basically homeostasis means maintenance of constant. If you are talking about glucose level, so we are taking these three stages. First one is low, this one is high, this one is moderate. So basically the process of homeostasis means ये क्या करता है, basically ये आपको मेंटेन करके रखता है एक पॉइंट पर, एक पॉइंट मतलब कि मॉडरेट करके रखता है, ना ही इसे हाई होने देगा ना ही लो होने देगा। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से स्वस्थ है या पूरी तरह से हेल्दी है तो, लेकिन अगर ये डिसबैलेंस हो जाए, मतलब कि अपने आप को ये इधर या इधर एडजस्ट न कर पाए, तो क्या होता है बेसिकली, अगर ये हाई हो गया तो हम कहते हैं शुगर का पेशेंट है, लो हो गया तो भी कहते हैं शुगर का पेशेंट है, लेकिन हम कह सकते हैं एक लो शुगर का है और एक हाई शुगर का है। नेक्स्ट इन इज कॉन्शियसनेस. Basically consciousness means awareness of surrounding. So in your NCERT textbook there is example given of the patient in coma. अगर कोई पेशेंट कोमा में है तो क्या उसे लिविंग कह सकते हैं? तो as per the scientist research as well as doctoral research, we can say as living as well as also non-living, because if a person is in coma, so at that time the person who is suffering from coma, his mind is working. No, mind is not working. Mind is dead, but body, internal organs are working. Because if the patient is in coma, heartbeat is normal, everything is normal, but patient is there on the stretcher. Now we will see the next topic, that is adaptation. So in consciousness you must study two more topics, that is response and one more topic, that is self-consciousness. Self-consciousness. Response means you will study in class 11 in the related chapters, in the chapter named neural control and coordination, about if you touch any substances. So there are many type of receptors like photoreceptors, thermoreceptors, glycoreceptors, many receptors are present which will help you to detect anything. So basically everything will be detected in the form of stimuli.
stimuli is a touch or any type of external change. So response is given to any stimuli. Got that clear? And we are talking about self consciousness. जैसे आपने किसी को पीट दिया तो वो भी उसको उल्टी पीटेगा, इसका मतलब उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है, वो जानता है कि आप नहीं पीटा है। तो क्लास में कभी आप देखे होंगे कोई किसी को कुछ बोल देता है तो आप भी बोल देते हो, क्योंकि आपने सुना है तो आपने बोल दिया। ये थोड़ी ना है कि आप नहीं बोलोगे, आपका ये मन करेगा बोलने के लिए, तो वो भी कहलाता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ एडाप्टेशन की। एडाप्टेशन बेसिकली होता क्या है? तो बेसिकली अपने आप को किसी इन्वायरमेंट में कह सकते हैं ढाल देना, या अपने आप को उस इन्वायरमेंट में बना डालना, उसी में फिक्स हो जाना, ये क्या कहलाता है? एडाप्टेशन। जैसा कि आप अभी एडाप्टेड हैं किसके लिए? इस टाइप, जैसे कि हम इस समय यूपी में हैं तो यूपी के इन्वायरमेंट में आप एडाप्टेड हैं। अगर आपको कश्मीर में कर दिया जाए तो आप ऐसे ही नहीं घूम सकते, आपको उसके लिए अलग से सिस्टम चाहिए बचने के लिए। लेकिन जो कश्मीर के लोग हैं वो अपने आप को क्या किए हैं, वहाँ पर अपने आप को एडॉप्ट कर लिए हैं, अपने आप के रहने की पूरी व्यवस्था हो गई है। उनकी बॉडी भी, आप उनके चमड़े को काटेंगे तो आपकी बॉडी में उनके बॉडी कंडीशन में बहुत डिफरेंस मिलेगा। आपकी चमड़ी पतली होगी, उनके मोटे होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें अपने अंदर हीट को इंसुलेट करना है, अपने अंदर हीट को रोक के रखना है, और हमें क्या करना है? हमें हीट को इवापोरेट कराना है। तो जैसा कि देख सकते हैं वही कहलाता है एडाप्टेशन। इवोल्यूशन क्या होता है? आपने क्लास 9th में पढ़ा था डार्विन के बारे में, लेमार्क के बारे में। उन्होंने कुछ थ्योरीज दी हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है अपने आप को क्या करता है? इवोल्यूट करता है। इवोल्यूट का मतलब, अगर वो जैसे कि आप देखे होंगे डायनासोर्स के बारे में, डायनासोर्स किससे बने? छोटे मार्सुपियल्स से बने। छोटे मार्सुपियल मतलब जो देखने में तो चूहे की तरह ही थे, जो बिलों में रहते थे। जब डायनासोर खत्म हो गए तो ऐसा माना जाता है कि मार्सुपियल्स बच गए, और यही मार्सुपियल्स कुछ दिनों, कुछ सालों बाद, कुछ करोड़ सालों बाद, कुछ सालों बाद नहीं, कुछ करोड़ सालों बाद क्या हुए? जमीन पर रहने लगे। कुछ उसके और कुछ करोड़ सालों बाद इनमें और परिवर्तन हुआ। अब एक आने लगे, पेड़ों की टहनियों पर रहने लगे, जिन्हें हम बंदर कहते हैं। और उसके बाद और सा डेवलपमेंट हुआ, ज़मीन पे उतरे खाना ढूंढने के लिए, खड़े होकर सीधे चलने लगे। और इस समय आप हमें अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को देख सकते हैं। तो ये पूरा एक सीक्वेंस है इवोल्यूशन का। यही इवोल्यूशन आपको पढ़ना है क्लास 12th में, चैप्टर नंबर 7 में। उसमें क्या है? उसमें इवोल्यूशन की सभी थ्योरीज दी गई हैं, इवोल्यूशन के बारे में बताया गया है। लेटर के मॉड्यूल्स में आपको भी बता दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं रिपेयर एंड रीजनरेशन। इसका मतलब क्या होता है? अगर आपके हाथ में कहीं खरोच आ जाए, हाथ का कुछ अंग कट जाए या कोई भी बॉडी पार्ट्स कट जाए, उसमें क्या होता है? आपका वो पार्ट फिर से ग्रो कर जाता है। जैसा कि हमने अपनी दाढ़ी छिलवा ली, फिलहाल दाढ़ी तो नहीं है, मूंछ है, मूंछ छिलवा ली, फिर से मूंछ उगाएगी, इसका मतलब वो रीजनरेट हो रही है, वो फिर से बढ़ जा रही है। रिपेयर का मतलब मैंने अपने हाथ की उंगली काट दी, अब ऐसे ये नहीं काटी, ये काटी है, तो क्या होगा? कुछ दिनों बाद ये खुद अपने आप रिपेयर हो जाएगा, हील अप हो जाएगा। तो वही कहलाता है रिपेयर। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में दोनों पाया जाएगा तो क्या कहलाएगा? लिविंग कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्लांट बॉडी में देखते होगे ग्राफ्टिंग मेथड। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं? किसी प्लांट की बॉडी को काट करके ये दूसरे प्लांट की बॉडी से अटैच करते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं, और कुछ दिनों बाद इसको खोलोगे तो ये दोनों आपस में चिपके हुए दिखेंगे। तो ये भी अपने को क्या कर लिया? रिपेयर कर लिया। बात समझ गए यहाँ तक? उसके बाद बढ़ते हैं एजिंग में। एजिंग का मतलब होता क्या है? तो बेसिकली एजिंग का मतलब होता है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन, डिटेरियोरेशन इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब बेसिकली कह सकते हैं एक तरह से यह होता है बर्थ से एक एडल्ट के रूप में बनना और एडल्ट से कहाँ हो जाना? भगवान को प्यारे हो जाना। यही कहलाती है एजिंग प्रोसेस। अगर ये एजिंग नहीं होती तो अर्थ ऐसा नहीं होता। आपके एक घर में कम से कम 100 लोग रहते हैं अभी तक, या उससे अधिक हो सकते हैं। मैं तो 100 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अब ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेथ। आपके पेपर के अनुसार एक टर्म हो सकता है, स्टडी ऑफ एजिंग इज कॉल्ड जीरोटोनोलॉजी। स्टडी ऑफ एजिंग इज कॉल्ड
जीरोंटोलॉजी। अब बात करें डेथ की, तो डेथ बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बायोलॉजिकल डेथ, एक होता है क्लिनिकल डेथ। तो बेसिकली क्लिनिकल डेथ का मतलब होता है जब आपका हार्ट बीट रुक जाए, पल्स भी रुक जाए, ब्रीथिंग स्टॉप हो जाए, आप सांस नहीं ले पा रहे हैं और आपकी प्यूपिल्स, जो आंखों की पुतलियां हैं, वो काम करना बंद कर दें। देखते हैं कि जब डॉक्टर चेक करना होता है तो आपकी आंखों की पुतलियों को देखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो आंखों की जो पुतलियां होती हैं वो भी अपने आप को क्या करती हैं, रिसेट करती हैं, रिसाइज करती हैं। फिर ध्यान दीजिए, ये हमने बात की किसकी, क्लिनिकल डेथ की। अगर हम बात करें बायोलॉजिकल डेथ की, बेसिकली होता क्या है, तो बेसिकली जो बायोलॉजिकल डेथ होती है उसमें हम बात करते हैं स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, मतलब कि ब्रेन आपका काम करना ही बंद कर देगा। और उसके बाद कह सकते हैं रिडक्शन ऑफ टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर क्या होने लगेगा, खत्म होने लगेगा, मतलब कि बॉडी ठंडी पड़ जाएगी। उसके बाद देखिए जो भी मेटल्स होते हैं या मसल्स होते हैं आपकी बॉडी में, वो एक्सपेंड करते हैं कुछ समय के लिए और फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तुरंत। तो इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी सिकुड़ जाती है। आप अपने घरों में किसी को मरते हुए जरूर देखे होंगे या किसी दूसरी जगह मरते हुए देखे होंगे। इसमें क्या होता है, वो लोग जो मरे होते हैं उनकी बॉडी देखते हैं पहले फूलती है, पचकती है, बॉडी सिकुड़ती है और बढ़ जाती है। तो यही बात होती है। तो क्लिनिकल डेथ का दो भाग होता है, एक होता है क्लिनिकल डेथ, एक होता है बायोलॉजिकल डेथ। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, आपका चैप्टर ये खत्म हो गया द लिविंग वर्ल्ड। इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।